السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دروس اللغة العربية کا پہلا پارٹ کا لیکچر نمبر 14 ہم دیکھ رہے تھے اس کتاب کا لیسن نمبر 9، جس میں ہم پارٹ اے دیکھ چکے تھے نعت اور منعوت کے متعلق، ایڈجیکٹیوز کے متعلق۔ اس کے پارٹ بی میں آتھر بیان کرتے ہیں ان دس پارٹ وی لرن، کہ اس پارٹ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایڈجیکٹیو کوالیفائنگ اے ڈیفینٹ ناؤن، جب ایڈجیکٹیو یعنی عربک میں جسے ہم کہتے ہیں نعت، نعتن کوالیفائنگ اے ڈیفینٹ ناؤن، کوالیفائنگ گرامرٹیکلی کہتے ہیں ایٹریبیوٹنگ اے کوالٹی، ایٹریبیوٹنگ اے کوالٹی ٹو اے ناؤن، یعنی جب ڈیفینٹ ناؤن کو ایڈجیکٹیو کوئی کوالٹی ایٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کتاب میں ہمیں اس پارٹ بی میں سیکھنا ہے ڈیفینٹ ناؤن کے ایڈجیکٹو۔ پارٹ اے میں ہم نے دیکھے تھے انڈیفینٹ ناؤن کے ایڈجیکٹو۔ ڈیفینٹ ناؤن یعنی جسے ہم عربک میں کہتے ہیں معرفہ، یعنی جب ناؤن پہ الف لام ہوگا یا جب ناؤن پراپر کوئی پراپر نیم ہوگا اس کا ایڈجیکٹو، مثال کے طور پر این المدرس، یہاں پر المدرس ہے، مدرس نہیں ہے، المدرس، یہ معرفہ اسم ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ الف لام جب ہم ناؤن کو عربک میں ایڈ کرتے ہیں، اسم کو ایڈ کرتے ہیں، وہ پھر معرفہ بنتا ہے، ڈیفینٹ بنتا ہے، ایک پرٹیکولر اسپیسیفک چیز بن جاتی ہے۔ جیسے این المدرس الجدید، المدرس الجدید، المدرس کا یہاں پر نعت ہے الجدید، المدرس مرفوع ہے اس لیے نعت بھی مرفوع ہے، المدرس میں الف لام ہے اس لیے نعت میں بھی الف لام ہے، المدرس سنگولر ہے اس لیے الجدید بھی سنگولر ہے، المدرس مذکر ہے الجدید بھی مذکر ہے۔ اس لیے جب ایڈجیکٹ جو منعوت ہوگا یعنی ناؤن جس کا کوئی ایڈجیکٹ اس کے بعد آیا ہے، جب منعوت کا نعت جب منعوت معرفہ ہوگا، ڈیفینٹ ہوگا، تب اس کا نعت جو ہے وہ بھی معرفہ آئے گا، ڈیفینٹ آئے گا۔ اچھا، اس پارٹ میں ہمیں ایک اور لفظ دیکھنا ہے الذی، الذی اسے ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں اسم الموصول، اسم الموصول، اسم الموصول، میں یہاں پہ تھوڑا بڑا لکھ دیتا ہوں، اسم الموصول، اسم الموصول یعنی ریلیٹو پروناؤن، اسم الموصول یعنی یہ ایسا ناؤن ہوتا ہے، اسم الموصول، الموصول اصل میں کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچڈ ہے، جس کے ساتھ کوئی چیز جڑا ہوا ہے، اس کو اسم موصول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایسا ریلیٹو پروناؤن ہوتا ہے یا ایسا ناؤن ہوتا ہے جس کا میننگ جو ہے وہ تب تک کلیئر نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے بعد کوئی سینٹنس یا فریز نہ آ جائے جو اس ناؤن کو ڈیفائن کرے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے مثال کے طور پر ہو یا وچ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے دا مین ہو، دا مین ہو، پھر کہیں گے از اے فیمس مرچنٹ، یا اگر ہم خالی کہیں گے دا مین ہو اور اس کے بعد چپ کریں گے، یہ ہو جو ہے، ہو کا میننگ ہمیں تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہو کے بعد ہم کوئی جملہ یا شبہ الجملہ یعنی سینٹینس یا فریز نہیں لائیں گے جو اس ہو کو ڈیفائن کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے الذی جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، عربک میں ہم یاد رکھیں گے اسم الموصول۔ ٹھیک ہے، آتھر کہتے ہیں اف اٹ ریفرز ٹو اے ہیومن بینگ، بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ الذی کسی ہیومن بینگ کے لیے استعمال کریں گے تب اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ہو، اور جب ہم اینڈ اف اٹ ریفرز ٹو این اینیمل اور اے تھنگ، یا جب یہ کسی جانور یا کسی
नॉन लिविंग थिंग को या गैर आकिल चीज को ये रेफर करता हो, तब इसकी ट्रांसलेशन होगी विच। मिसाल के तौर पर अर्रजुलु अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अलआन, الرجل الذي خرج من المسجد الآن تاجر شهير. The man who left now from the masjid is a famous merchant. आदमी जो निकला मस्जिद से अभी एक फेमस मर्चेंट है। देखिए ये जो जुमला है ना, अर्रजुलु अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अलआन ताजिरुन शहीरुन, अगर हम इसका एराब करेंगे, हम इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, पहले हम देखेंगे पहले लफ्ज़ है अर्रजुलु, ठीक है। अर्रजुलु, अर्रजुलु ये नाउन है, और नाउन से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है और वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तब हम उसको कहते हैं मुब्तदा। फिर उसके बाद है अल्लज़ी, आदमी जो खरज मिनल मस्जिद अलआन ताजिरुन शहीरुन। अगर हम इसका एराब करेंगे, हम कहेंगे अर्रजुलु ये मुब्तदा है। फिलहाल हम इस पार्ट को भूल जाए, अल्लज़ी से यहाँ तक हम भूल जाएंगे। अर्रजुलु ताजिरुन शहीरुन, द मैन इज ए फेमस मर्चेंट। असल में जुमला ये था, अर्रजुलु ताजिरुन शहीरुन, हमें असल में कहना था आदमी के मतलब क्या, आदमी जो है एक फेमस मर्चेंट है। ताजुरुन ये यहाँ पे इसकी खबर है, आदमी के मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये ताजिर है, मगर उसके साथ ताजुन के मतलब हम कह रहे हैं शहीरुन फेमस, इसलिए ये इसका नात है, क्योंकि ये शहीरुन इस ताजिर को डिफाइन कर रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका नात है। ये नकिरा है इसलिए ये भी नकिरा है। अब मसला है ये सारा जो यहाँ पर है अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अल आना, ये क्या है, हम कहेंगे अल्लज़ी जो है, देखिए ये अल्लज़ी क्या कर रहा है, आदमी, क्या आदमी जो अभी मस्जिद से निकला, उसके मतलब क्या, एक फेमस मर्चेंट है। अब ये जो बीच वाला है ना, अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अल आना, जो निकला अभी मस्जिद से अभी, जो निकला मस्जिद से अभी, इसने क्या किया, इसने इस अर्रजुल को डिफाइन किया, इसको मीनिंग ऐड किया, इसलिए हम कहेंगे ये अल्लज़ी जो है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी नाउन है, हम कहेंगे इसका नात है। और ये जो इस्मुल मौसूल होता है, इस्मुल मौसूल होता है, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि इस्मुल मौसूल जो ऐसे वर्ड कुछ और भी होते हैं, ये इस्मुल मौसूल जो होता है ये बाय डिफॉल्ट मारिफा होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो अरबिक में होते हैं ये नकिरा नहीं होते, ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, मारिफा, ठीक है। इसलिए अर्रजुल भी मारिफ है, अल्लज़ी भी मारिफ है, इसलिए ये इसका क्या है, नात है, क्योंकि ये जुमला जो सारा जो है अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद ना, ये इस अर्रजुल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये जो जुमला है ना, हमने कहा अभी कि अल्लज़ी जो है ये इस्म मौसूल है, और इसके बाद एक जुमला आना चाहिए, जो जुमला जो सेंटेंस इस अल्लज़ी को डिफाइन करे, क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर पर कहते हैं आदमी जो, फिर चुप करते हमें समझ नहीं आएगा जो का मतलब क्या, द मैन हूँ। इसलिए इसके बाद जो ये जुमला है ना, खराजा मिन अल मस्जिद अल आना, इसने क्या किया, इसने इस अल्लज़ी को डिफाइन किया, इसको हम कहते हैं सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल यानी ऐसा सेंटेंस जो ताल्लुक रखता है इसमें मौसूल के साथ, और ये सेंटेंस जो है, ये सिलतुल मौसूल जो है, ये इस इसम मौसूल को डिफाइन करता है, ठीक है। इसलिए ये जो बीच में है खराज मिनल मस्जिद अल आना, ये एक आप समझिए कि एक्स्ट्रा सेंटेंस है असली सेंटेंस के दरमियान, जो सेंटेंस इस अल्लज़ी को क्या करता है, इस अल्लज़ी इस अल्लज़ी की मीनिंग को डिफाइन करता है, ठीक है, इस अल्लज़ी की मीनिंग को डिफाइन करता है। और खुद ये अल्लज़ी क्या है, ये अल्लज़ी इस अर्रजुल का क्या है, अन्नात, ये इसका नात है। इसलिए हम कहेंगे अर्रजुल जो है ये मुब्तदा है, अल्लज़ी ये इसका नात है, खरज मिनल मस्जिद अल आना ये क्या है, ये इस इसमें मौसूल का सिलत मौसूल है, सिलतुल मौसूल, सिलतुल मौसूल, यानी ये सेंटेंस जो है इस एलएजी को क्लियर कर रहा है, इसकी एम्बिग्यूटी को, वेगनेस को दूर करता है। ताजुरुन ये इसकी खबर है, शहीरुन ये इस ताजुरुन का नात है। इसलिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है अल्लेजी, इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये इसमें मौसूल है,
अगर ये ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होगा तो ट्रांसलेट होगा हु, अगर एनिमल या कोई चीज होगी तो ट्रांसलेट होगा विच। ठीक है। और ये इसी मौसूल जो होता है इसके बाद जरूरी कोई फ्रेज होना चाहिए, मिसाल के ऊपर जार मजरूर होना चाहिए, या पूरा एक जुमला होना चाहिए, चाहे फिर वो जुमला फेलिया हो या जुमला इसमें हो, जो इसमें मौसूल को क्या करे, इसकी मीनिंग को क्लियर करे। ठीक है। इसलिए द मैन, मैन के मतलब कि हमने क्या कहा, इज अ फेमस मर्चेंट। हु, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। वेंट टू द मॉस्क जस्ट नाउ, ये क्या है, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करता है। इसी तरह अलबई, तो अब ये थिंग की मिसाल है, एक नॉन लिविंग थिंग की। ठीक है, गैर अकल चीज की। अलबैतुल्लज़ी अमाम अल मस्जिद लिल इमाम, द हाउस विच इज इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क बिलोंग्स टू द इमाम। असल हमें क्या कहना था, हमें कहना था द हाउस बिलोंग्स टू द इमाम, अलबैतु लिल इमाम। हम कहेंगे अलबैतु ये मुब्तदा है, और लिल इमाम जो है ये जार मजरूर खबर है इस इमाम इस बायत की। अल्लजी जो है ये सिलतुल मौसूल है, ये इस अलबैत का क्या है, नात है। अमाम अल मस्जिद जो है, अमामा ये ज़र्फ है, और अल मस्जिद इसका मुजाफ इलैह है, और ये अमाम अल मस्जिद जो है ये इसका सिलतुल मौसूल है, ये इसका सिलतुल मौसूल है। फिर कहते हैं नो डैट व्हेन लि यानी हर्फ जर लाम, लि इज यूज्ड विद अ नाउन हैविंग अल, यानी जब हर्फ जर लाम ऐसे नाउन के बाद आएगा, ऐसे नाउन के पे दाखिल होगा जिस नाउन पे अलिफ लाम दाखिल, हरफ तारीफ दाखिल हो, तब क्या होता है, ये अलिफ जो है ये गिर जाता है। द अलिफ ऑफ द अल इज ओमिटेड, इसको हम ओमिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अल इमाम, जब आप इसके साथ लाम जोड़ेंगे ये बनेगा लिल इमाम, बीच में जो अलिफ है, अल इमाम का जो अलिफ है वो साकित हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अल मुदर्रिस ये बनेगा लिल मुदर्रिस, देखिए लाम को डायरेक्ट लाम के साथ जुड़ा और इस अलिफ को हमने गिरा दिया। फिर कहते हैं इंद, इंद का मतलब है विद, और ये इंद जो है ये भी ज़र्फ है, और ये ज़र्फ मकान है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि कुछ नाउन्स होते हैं अरबिक में जो किसी प्लेस या किसी टाइम को डिनोट करते हैं, उनको हम कहते हैं ज़र्फ। ठीक है, या तो ज़र्फ मकान या ज़र्फ ज़मान। ये ज़र्फ मकान है, और हमने कहा था कि ज़र्फ मकान के बाद जो होता है अक्सर मुज़ाफ इलैह होता है। इसी तरह इंदा का मसला है, द नाउन फॉलोइंग इट हैज ए कसरैन, यानी इंदा के बाद जो नाउन आएगा वो मुजाफ इलैह बनेगा इसका, और उस पर कसरा लगेगी, उस पर जे लगेगी। मिसाल के तौर पर अल मुदर्रिसु इंदल मुदीर, द टीचर इज विद द हेडमास्टर, द टीचर इज विद द हेडमास्टर। इन द, अल मुदर्रिसु हम कहेंगे ये मुब्तदा है, इन द ये ज़र्फ है और खबर है, और अल मुदीरी ये इसका मुजाफ इलैह है। ठीक है। अब हम लेसन पढ़ेंगे, कहते हैं आइन अल मुदर्रिसु, वेयर इज द टीचर, हुआ फिल फसल, ही इज इन द क्लास। हम कहेंगे हुआ ये मुब्तदा है, फिल फसल फी हर्फ जर है, अल फसल इसका इसम मजरूर है, और ये फिल फसल जो है ये इसकी खबर है। फिर कहते हैं वह आइन अल मुदर्रिसु जो अल जदीदु, नया टीचर कहाँ है, कहते हैं हुआ इन दल मुदीर, वो हेडमास्टर के पास है। हुआ मुब्तदा, इन द ज़र्फ मकान, अलमुदीरी ज़र्फ मकान, और खबर हुआ की अलमुदीरी मुज़ाफ इलैह। फिर कहते हैं अयन तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म कहाँ है, ज़हबा इलल मकतबती, वो लाइब्रेरी तक गया। ज़हबा इलल मकतबती, अल मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी, ज़हबा इलल मकतबती। फिर कहते हैं मन ज़ालिका अर्रजुलु अत्तवीलु अल्लज़ी खरजल आन मिन मदरसती, कौन है वो, अर्रजुलु तवील लंबा आदमी, अत्तवील लंबा, कौन है वो लंबा आदमी जो हु खरज अल मिल मदरसती, जो अभी निकला मदरसे से। देखिए अल्लजी यहाँ पर क्या है, ये इसमें मौसूल है, और ये खरज अल मिल मदरसी ये इसका क्या है, सिलतुल मौसूल। कहते हैं हुवल मुदीरुल जदीद, वो नया हेडमास्टर है। हुआ मुब्तदा, अल मुदीर इसकी खबर है, और अल जदीद इसका नात है। अल मुदीर मारिफा है, इसलिए अल जदीद भी मारिफा आ गया, इसका नात भी मारिफा आ गया। फिर कहते हैं वमानिल वलदुस सगीरुल लजी खरजल आन मिनल फसल, और कौन है छोटा बच्चा, अल वलदु अस्सगीरु छोटा बच्चा, स्मॉल बॉय, अल्लदी जो खरजल आन मिनल फसल जो निकला अभी क्लास से। ठीक है। कहते हैं हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीदी, वो नए मुदीर का, नए हेडमास्टर का बेटा है। अगर हम इसका एराब करेंगे, यानी ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, हम कहेंगे
हम कहेंगे हुआ इब्नु अल मुदीर अल जदीद। अल जदीद हुआ मुब्तदा, इब्नुल मुदीर मुदीर हेडमास्टर का बेटा, ये इसकी खबर है और मुजाफ है। मुदीर का बेटा, अल मुदीरी ये मुजाफ इलैहि है। और देखिए अल मुदीरी यहाँ पर इस पे कसरा है, और इस अल मुदीर का अल जदीद नात आया है, ये मारिफा है इसलिए अल जदीद भी मारिफा आ गया। अल मुदीर मुजक्कर है इसलिए अल जदीद भी मुजक्कर आ गया। अल मुदीर पे कसरा है, क्यों कसरा है? क्योंकि ये मुजाफ इलैहि और मुजाफ इलैहि मजरूर होता है, उस पे कसर होता है, इसलिए इसका नात जो है ये भी मजरूर आ गया। हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, हुआ मुब्तदा, इब्नु खबर मुजाफ, अल मुदीर मुजाफ इलैहि, अल जदीदी नात मुदीर। फिर कहते हैं लिमन तिलक सय्यारतु अल जमीलतु, वो नई, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? अस्सय्यारतु अल जमीलतु। देखिए अस्सय्यारा ये मारिफा है इसलिए अल जमीला भी मारिफा है, अस्सय्यारा मुअन्नस है इसलिए अल जमीलतु भी मुअन्नस आ गया। कहते हैं हिया लिल मुदीरिल जदीद, वो नए हेडमास्टर की है। हिया मुब्तदा, लिल मुदीर जार मजरूर, खबर, और अल जदीदी ये मुदीर का नात है। कहते लिमन हाजल किताबुल कबीर, ये बड़ी किताब किसकी है? अहो अलिल मुदरिस, क्या वो मुदरिस की है? ला नहीं, हुआ लित्तालिबती अस्सगीरती, वो छोटी तालिब इल्म की है, वो छोटी फीमेल तालिब इल्म की है। हुआ मुब्तदा, लित्तालिबी जार, लि हर्फ जर, अत्तालिबती इसमें मजरूर ये इसकी खबर है, और अस्सगीरा ये अत्तालिबा का नात है। कहते आइन अल मिलअकतु अस्सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है? हिया फिल कूबी, वो कप में है। अलकूब कहते हैं कप को। ठीक है, हिया मुब्तदा, फी हर्फ जर, अलकूब इसम मजरूर, फिल कूब जार मजरूर, हिया की खबर। फिर कहते हैं आयन अल कुर्सियुल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? हुआ हुना का, वो वहां पर है। हुना का मतलब है दियर। ठीक है, हुआ हुना का, ये हम इससे पहले देख चुके हैं कि ये इसमें इशारा होता है लेकिन खास मकान के लिए, यानी किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए। फिर तमरीन में कहते हैं इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। कहते हैं अत्तबीबु अल जदीदु फिल मुस्तशफा, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। अगर हम इसका एराब करेंगे ग्रामेटिकल एनालिसिस से, हम कहेंगे अत्तबीबु ये मुब्तदा है, अल जदीदु ये इसका नात है, एडजेक्टिव है, फिल मुस्तशफा ये हर्फ जर प्लस इसमें मजरूर इसकी खबर है, इसकी खबर। फिर कहते हैं वत्तबीबुल कदीम, और पुराना डॉक्टर फिल मुस्तौसफ, वो क्लिनिक में है। मुस्तौसफ फार्मेसी भी को भी कहते हैं, क्लिनिक को भी कहते हैं। वत्तबीबुल कदीम फिल मुस्तौसफ, और पुराना डॉक्टर जो है वो क्लिनिक में है। पुराना डॉक्टर जो है वो क्लिनिक में है। फिर कहते हैं अल कलमुल मकसूर अलल मकतबी, टूटा हुआ पेन टेबल पर है। अल कलम मुब्तदा, अल मकसूर इसका नात, अलल मकतबी इस जार मजरूर खबर। अल मिरवाहतु अल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरति, नया पंखा बड़े कमरे में है। अल मिरवाहतु मुब्तदा, अल जदीदतु इसका नात, फी हर्फ जर, अल गुरफति इसका इसमें मजरूर, और ये इसकी खबर है, और अल कबीरति ये नात है किसका? गुरफा का, कमरे का। अल लुगतुल अरबियतु सहलतुन, अरबिक जबान आसान है। अल लुगतु मुब्तदा, अल अरबियतु इसका नात, सहलतुन इसकी खबर। फिर कहते हैं अल वलदु अत्तवीलु अल्लज़ी खरज मिनल फस्ल अल आन तालिबुम मिनल कुवैत, लंबा लड़का जो निकला क्लास से अभी, अल आना का मतलब होता है नाउ, वो क्या है? तालिबुन है। असल में क्या ना था, अल वलदु तालिबुन मिनल कुवैत, कि द बॉय इज ए स्टूडेंट फ्रॉम कुवैत। ठीक है, फ्रॉम कुवैत। हम कहेंगे अल वलदु ये मुब्तदा है,
अत्तवील ये इसका नात है, तालिबुन ये इसकी खबर है। ठीक है, एक सब सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अल वलदु तवीलु तालिबुन। मगर उसके साथ साथ ये कह रहे अल्लजी खरज मिन अल फसल अलाना, जो निकला अभी क्लास से। अल्लजी हम कहेंगे ये इसका दूसरा नात है, क्योंकि ये अल्लजी भी क्या कर रहा है, जो ये अल वलद को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि हम अल वलद के को डिफाइन करें अतवील से और इस चीज़ से कि वो निकला अभी क्लास से। लंबा तालिब इल्म जो निकला अभी क्लास से, उसके बारे में क्या, तालिब, वो तालिब इल्म है, कहाँ से, मिनल कुवैत, वो तालिब इल्म है कुवैत से। ठीक है, इसलिए अल्लजी जो है इनात है। और खरज मिनल फसल अल आना, ये सारा जो जुमला है ये इस अल्लजी का क्या है, सिलतुल मौसूल, ये इसका सिलतुल मौसूल है। तालिबुन ये इसकी खबर है। फिर रहता है मिनल कुवैत, हम कहेंगे मिन ये हर्फ जार है, और अल कुवैती ये इसका इसमें मजरूर है। फिलहाल हम याद रखेंगे मिनल कुवैत जो है ये तालिबुन के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये तालिबुन को डिफाइन कर रहा है। दूसरे अल्फाज में मिनल कुवैत जो है ये भी यहाँ पे नात है तालिब का। जैसे कभी एक सिंगुलर वर्ड नात आ सकता है, इसी तरह कभी फ्रेज भी नात आ सकता है, फ्रेज भी एडजेक्टिव आ सकता है, कभी पूरा सेंटेंस भी एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, कभी पूरा सेंटेंस भी एडजेक्टिव आ सकता है। जब एक नकिरा नाउन के बाद सेंटेंस मिसाल कंप्लीट हो चुका है, अब नकिरा नाउन के बाद डायरेक्ट एक जार और मजरूर की कंस्ट्रक्शन आ जाए, हम उस जार मजरूर को कहते हैं कि ये उस नकरा नाउन का क्या है, नात है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, मुब्तदा भी आ गया, खबर भी आ गया। मिनल कुवैत जो है क्या है, ये तालिब को फर्दर डिफाइन करता है। फिलहाल खाली अपने याद रखें, अल वलदु ये मुब्तदा है, अत तवील इसका नात है, और अल्लज़ी जो है ये इसमें मौसूल है, और ये भी नात है अल वलद का। और ये जो बीच में खरज मिनल फसल अलाना जो है, ये इसका सिलत मौसूल है। यानी ऐसा सेंटेंस जो इस अल्लज़ी को डिफाइन करता है। फिर कहते हैं आना फिल मदरसति सानवियत, असानविया का मतलब होता है सेकेंडरी, मदरसा यानी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यानी आई एम इन सेकेंडरी स्कूल, यानी मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अना मुब्तदा, फी हर्फ जर, अल मदरसती इसी मजरूर, और ये इसकी खबर है, असानविया ये अल मदरसा का नात है। फिर कहते हैं ज़हब अर्रजुलु अल फ़कीरु इलल वज़ीर, द पुअर मैन वेंट टू द मिनिस्टर, द पुअर मैन वेंट टू द मिनिस्टर। यहाँ पे हमें जो देखना है अर्रजुल जो है ये मारिफा है, इसलिए अल फकीर इसका नात भी मारिफा है। तो कहते हैं जलस तालिबुल जदीदु खल्फ हामिद, नया तालिब इल्म बैठा हामिद के पीछे। अस्कीनु अल कबीर हादुन जिद्दन, हाद कहते हैं शार्प को, हादुन। एक तो हमने देखा था हारुन रा के साथ, उसका मतलब होता है हॉट। दूसरा है हादुन दाल के साथ, उसका मतलब होता है शार्प, तेज। यानी बड़ी छुरी, बड़ा चाकू बहुत तेज है। जिद्दन मतलब बहुत, वेरी। द बिग नाइफ इज वेरी शार्प। अस्सिकीन हम कहेंगे ये मुब्तदा है, अल कबीर ये इसका एडजेक्टिव है, नात है। हादुन ये इसकी खबर है। ठीक है, जिद्दन क्या है वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो हमें थर्ड वॉल्यूम में देखना है। फिर 10वें सेंटेंस में कहते हैं मन हाजल वालदु अल कसीर, ये छोटे कद का लड़का कौन है। कहते हैं हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीद, वो नए मुदर्रिस का बेटा है। हुआ मुब्तदा, इब्नु खबर मुजाफ, अल मुदर्रिस मुजाफ इलैह, अल जदीदी इसका नात। दूसरी तमरी में कहते हैं इमला फिल फराग फीमा यली बिन नातिल लजी बैन कौसैन बाद तहलियतिही बे अल इंदल लुजूम, जो आगे आने वाली खाली जगह है उसको भरो ऐसे नात के साथ जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान है, मगर उस नात को रखो खाली जगहों में, बाद तहलियती जोड़ने के बाद, जोड़ने से बेअल, उसके साथ अल जोड़ने के साथ उस नात को रखो खाली जगह में, इंदल लुजुम, लेकिन तब अल जोड़ो जब लाजिम होगा। कब लाजिम होगा, जब मनऊत मारिफा होगा। अगर मनऊत मारिफा होगा तो नात को भी हम अल जोड़ेंगे, अगर मनऊत नकिरा होगा तो नहीं जोड़ेंगे। मिसाल को ऐन अल मुदर्रिस, आगे लिखा है जदीदुन, हम कहेंगे अल जदीदु।
हमने क्यों कहा अल जदीदु, क्योंकि अल मुदरिस में भी अल है। अत्ताजुरु, आगे दिखा है ब्रैकेट्स में कबीरुन, हम कहेंगे अत्ताजुरु अल कबीरु। हमने क्यों अल कहा, क्योंकि अलिफ लाम है कि बड़ा ताजिर फिस्सू के मार्केट में है। फिर कहते हैं अना तालिबुन, देखिए तालिबुन ये अब निकरा है, इसमें अलिफ लाम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अना तालिबुन कदीमुन, इसको भी हम निकरा रखेंगे। फिर कहते जलस तालिबु, द स्टूडेंट सैट खल्फ मोहम्मदिन, मोहम्मद के पीछे। अत्तालिबु इसमें अलिफ लाम है, इसलिए हम कहेंगे अल जदीद, अल जदीद। मनिल वलदु, यहाँ पे लिखा है तवील, हम कहेंगे अतवील, हमने को अलिफ लाम जोड़ा क्योंकि अल वलद में अलिफ लाम है। कौन है लंबा आदमी अल्लजी जो खरज मिनल फसल, निकला क्लास से। फिर कहते हैं मनिल वलदु, देखिए अलिफ लाम है इसलिए तवील उनको यहाँ पर हम अलिफ लाम जोड़ेंगे, हम कहेंगे मनिल वलदु तवील अल्लजी खरज मिनल फसल, कौन है लंबा लड़का जो निकला अभी क्लास से। कहते हैं अम्मारुन वलदुन, अम्मार लड़का है, कैसा लड़का है, कसीरुन छोटे कद का, वाला नकरा है इसलिए हम कसीरुन को भी नकरा रखेंगे अलिफ लाम के बगैर। फिर कहते हैं फैसलुन तबीबुन, हम कहेंगे शहीरुन विदाउट अलिफ लाम, क्योंकि तबीब में अलिफ लाम नहीं है, कि फैसल जो है एक फेमस डॉक्टर है। लिमन हाज सरीर, हम कहेंगे अल मकसूर, कि ये टूटा हुआ बेड किसका है। हाजा कलमुन मकसूर विदाउट अलिफ लाम, क्योंकि कलम जो है वो भी विदाउट अलिफ लाम है, कि ये टूटा हुआ पेन है। आइन सिक्कीनो, हम कहेंगे अल हाद अलिफ लाम के साथ, क्यों, क्योंकि अस्सिकीन में भी अलिफ लाम है, कि कहाँ है तेज चाकू। लिमन हादिही सय्यारतु, हम कहेंगे अल जमीलतु, कि ये खूबसूरत गाड़ी किसकी है। हमने क्यों कहा अल जमीला, जमीला के साथ हमने अल जोड़ा क्योंकि मनऊत में भी अल है। फिर कहते हैं इकरा, पढ़ो। अत्तालिबु, अब ये जो हमने देखा था ना अल्लजी, ये उसके मुतलिक तमरीन है। अल्लजी को हमने कहा था कि ये इसमें इस्मुल मौसूल है, इस्मुल मौसूल मीम वाव सौद वाव लाम, इस्मुल मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये इस्मुल मौसूल यहाँ पे अल्लजी क्या कर रहा है, ये इस तालिब को डिफाइन कर रहा है। तालिब इल्म जो खरज मिन अल फसल लाना, असल में क्या था, तालिबु मिन इंडोनेशिया, मिन इंडोनेशिया, द स्टूडेंट इज फ्रॉम इंडोनेशिया, इसलिए अत्तालिबु मुब्तदा, मिन हरफ जर, इंडोनेशिया इसमें मजरूर, दोनों मिलाकर अत्तालिब की खबर। फिर अल्लजी क्या है, ये इसका नात है, इस्मुल मौसूल नातुन। खरज मिन अल फसल आना क्या है, ये सिलतुल मौसूल है, यानी ऐसा सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है इस अल्लजी के साथ, जो इस अल्लजी को, इस अल्लजी की एम्बिग्यूटी को दूर करता है। क्योंकि हमने कहा था अगर हम कहेंगे द स्टूडेंट हु और उसके बाद चुप करेंगे, इस अल्लजी का मीनिंग समझ नहीं आएगा। अल किताबुल लजी, द बुक विच, अब अल किताब जो है ये एक थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, इसलिए हम ट्रांसलेट करेंगे अब इसको विच। दूसरी एक बात इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि अल्लजी जो है ये मैस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनाइन के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जो हम आगे देखेंगे, वो है अल्लती, वो हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में, अल्लती, ठीक है, अल्लती न कि अल्लजी। से अल्लजी जो है ये खास है मैस्कुलाइन के साथ, ठीक है, देखिए मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन। अत्तालिबु अल्लज़ी खरज मिनल फ़स्ल अनाला मिन इंडोनेशिया, तालिब इल्म जो निकला अभी क्लास से इंडोनेशिया से। फिर कहते हैं अल किताबुल लज़ी, द बुक विच अलल मकतब इज ऑन द टेबल लिल मुदर्रिस बिलोंग्स टू द टीचर। असल में था अल किताबु मुब्तदा लिल मुदर्रिस खबर, किताब बिलोंग्स टू द टीचर, लेकिन अल्लज़ी इसका नात है अल किताब का, और अलल मकतबी ये इस अल्लज़ी का सिलतुल मौसूल है। अलल मकतब ये फ्रेज है, ये इस अल्लज़ी को डिफाइन करता है, इसका सिलतुल मौसूल है। फिर कहते हैं लिमन हाजल कलमुल जमील अल्लज़ी अलल मकतबी, किसका है ये खूबसूरत कलम जो टेबल पर है। फिर कहते हैं अलबैतु अल कबीर अल्लज़ी फी ज़ालिक अश-शार लिल वज़ीर, असल में अलबैतु मुब्तदा, लिल वज़ीर खबर, अल कबीर ना पहला नात है, अल्लज़ी ये इसका दूसरा नात है, फी ज़ालिक अश-शार ये सिलतुल मौसूल है, ये क्या है, ये सिलतुल मौसूल है।
क्योंकि ये फी दाल का शहर अल्लज़ी को डिफाइन करता है। फिर कहते हैं अस्सरीर अल्लज़ी फी गुरफत खालिद मकसूर। असल में था अस्सरीर, बेड जो है, मकसूर टूटा हुआ है, इसलिए मुब्तदा, मकसूर खबर, अल्लज़ी क्या है फिर, ये इसका नात है, इसमें मौसूल है, नात है शरीर का। फी गुरफत खालिदिन, ये इसका क्या है, ये इसका सिलतुल मौसूल है। फिर आखिरी तमरीन में कहते हैं इकरा इल मिसाल, मिसाल को पढ़ो, सुम्मा कव्विन जुमलन अला गिरारी, फिर उसी पैटर्न पर जुमले बना। मिसालें दो है, अल किताबुल्लज़ी अलल कुर्सी सगीरुन, किताब जो कुर्सी पर है, ठीक है, छोटी है, यानी छोटी बुक है। अल किताबुल्लज़ी अलल कुर्सी सगीर, फिर कहते हैं अल किताबुल्लज़ी अलल मकतबी कबीर, किताब जो टेबल पर है, ठीक है, बड़ी है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं, मिसाल को यहाँ पे दिया है मुदर्रिसुन जदीद, मसलन हम कह सकते हैं अर्रजुलु अल्लज़ी खरज मुदर्रिसुन जदीद, आदमी जो निकला नया टीचर है, आदमी जो निकला नया टीचर है, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं अद्दीकु अल्लज़ी फिल हक़्ल, द रूस्टर विच इज़ इन द फील्ड, अल हक़्ल कहते हैं फील्ड को या खेत को आप कह ले, लिबिनतिल फल्लाही, वो किसान की बेटी की है, ठीक है। इसी के तरह मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अल वलदु अल्लज़ी दखल अल मस्जिद इब्नुल इमाम, लड़का जो मस्जिद में दाखिल हुआ इमाम का बेटा है। इस लेसन में जो हमने वर्ड्स देखे वो है एक तो अल मकतबु, अल मकतबतु, एक तो है लफ्ज़ अल मकतब, अल मकतब का मतलब है टेबल। इस तरह अल मकतब का दूसरा मतलब ऑफिस भी होता है। दूसरा अल मकतबतु ता मरबूता के साथ, इसका मतलब है लाइब्रेरी। अल मदरसतु सानविया सेकेंडरी स्कूल, अल वजीर मिनिस्टर, अल आना नाउ या जस्ट नाउ, हादुन शार्प, हुनाका दियर, अल मुस्तौसफ क्लिनिक या स्मॉल हॉस्पिटल, السوق मार्केट, المروحة فان، إندونيسيا إندونيسيا، الشارع ستريت، الكويت كويت. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.